प्रिंसिपल जो होते हैं वो ऑलरेडी आपकी प्रोसेस कर चुके होते हैं और वो डीआरटी में प्रूफ करते हैं कि द पर्सन हैव नो अमाउंट टू पे आवर डेट, देयरफॉर वी आर टेक अ पोजीशन. बट इफ यू प्रूव दैट कि नो सर प्लीज गिव अस सम काइंड ऑफ टाइम, सो आई विल पे इट. सो आपको वहां पे सिक्योरिटी दिखानी होती है कि ऐसी क्या चीज है जिससे आप हमें पैसा देंगे. तो इफ यू हैव सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी, यू जस्ट show in front of DRT and DRT will give some time, and on that time if you liable to pay the amount, then you will get some kind of injunction. 1 year का 2 year का injunction, at least 1 year और 3 month का injunction तो देती है बैंक अगर आप वहां पे जाते. 45 days का होता है पहला, और उसके बाद अगर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एनी पर्सन इंक्लूडिंग बोरोवर भी, so agreed by any of the measures taken by the secured creditors or his authorized officer for taking possession of the security may make an application along with the prescribed fees to the debt recovery tribunal having jurisdiction within 45 days from the date on which such measures are taken. कुछ फीस पे करके आप उनसे ये ले सकते हो, परमिशन ले सकते हो, इंजंक्शन ले सकते हो कि वी हैव पेड दिस ड्यू ऑन दैट डे इन 45 डेज. फिर आपको वो देती है 45 डेज का टाइमिंग, और उसमें आपको वो सारी चीजें पे करनी होती है. द डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल मींस DRT हैज टू डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन एज फार एज मे बी in accordance with the provision of the recovery of debt. So due to Bank and Financial Institution Act 1993 and rules made there under, उनके अंडर में सारी चीजें आती है वो. the application has to be disposed as early as possible but within 60 days. तो जो एप्लीकेशन है अगर वो लोग स्ट्रांग रहे तो आपका एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ वो पहले ही अपील कर चुके होते हैं. अगर आपने पहले अपील की है तो आपके ऊपर वो अप्लाई रहेगा, अदरवाइज उन्होंने की है तो उनके ऊपर रहेगा. तो दोनों पार्टीज में इन्वॉल्व होती है. नेक्स्ट, so next it is if for any person it is not possible, so the application the tribunal has to got the reason for delay, but such a delay should not be beyond 4 months from the date of filling of the application. 4 महीने तक आपका रिजॉल्व हो जाना चाहिए. अगर आपका डिले हो जाता है so you should submit your notification, you should submit your judgment, what why you are not present, why you delay, another reason you just mention the delay of reason, and then within a 4 months mean 120 days आपका एप्लीकेशन फुलफिल हो जाना चाहिए. अदरवाइज बैंक क्या करेंगे, आपके एप्लीकेशन को डिसमिस कर देंगे. गॉट इट? सो इफ एनी सच एप्लीकेशंस is not disposed, so within 4 months, how many? Within 4 months the aggrieved party can prefer an application to the appellate tribunal for seeking directions for the early disposal of the applications. Means tribunal means DRT has a right to aggrieved party can prefer an application. DRT को पूरे राइट्स दिए हुए हैं कि ओके आपने उनको एप्लीकेशन किया, आपने कंप्लेंट किया, दे विल एक्सेप्ट इट. Okay, they will give you a time, some kind of 4 month 45 pay. On that time bank has right to take possession, and even DRT has right to take a decision. Means DRT भी आगे बैंक के अगेंस्ट में डिसीजन दे देता है कि yes you are right and you will take your decision whatever you want. नाउ अपील टू अपीलेट DRT. DRT में फिर आप उसके ऊपर भी जाके अगर आप करते हो एनी पर्सन अग्रीड बाय एनी ऑर्डर made by the debt recovery tribunal can prefer appeal along with the prescribed fees to the appellate tribunal within 30 days from the date of receipt of the order or debt recovery tribunal. मतलब 30 days, within a 30 days you should pay or appeal, pay the fees within 30 days whatever, and you will give a receipt right from DRT ki yes you have your application is accepted and whatever the fee you have paid, this is the receipt.
So no appeal can lie unless the borrower deposit 50% of the debt claim secured creditors. और इसमें क्या होता है ना, जैसे इसमें ये भी डाल सकते हैं कि यार मैंने इतने की प्रॉपर्टी ली और मेरा तो इतना है, तो मतलब मुझे पैसा रिफंड चाहिए। तो डीआरटी में अगर आप करते हैं ना, जैसे बैंक को मैंने लास्ट कल ही आपको उदाहरण दिया था, एग्जाम्पल दिया था कि आपकी प्रॉपर्टी 10 लाख की है, आपने 3 लाख भरे, 7 लाख भरने हैं। अब आपकी प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है तो आप इसके लिए भी डीआरटी में जा सकते हो, तो आपको 50% जो भी है वो अमाउंट रिकवर करके मिलता है, लेकिन वो उनके हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको फीस पे करनी होती है, उसमें वहां पे प्रेजेंट होना होता है जहां जाके, लेकिन ये बहुत लमसम प्रोसेस है क्योंकि प्रॉपर्टी का है और जब वो जाएगी तब मिलेगा, मतलब लॉन्ग टाइम, जैसा मैंने पहले ही बताया। तो डीआरटी में भी इसके लिए भी आप अपील कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो कि यस, या तो फिर सबसे अच्छा आइडिया मैंने बताया कि आप अपने कलीग फ्रेंड्स को सेल कर दो ये। लेकिन हम लोग ये जैसे कॉर्पोरेट में होता है ना, फाइनेंस लॉ, जो फाइनेंशियल लॉ हम पढ़ रहे हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनीज में ये सारी चीजें होती है, बट सेटलमेंट पे सेटलमेंट करके ये मैक्सिमम जो इशू है वो सॉर्ट आउट हो जाता है, राइट। So second point, no appeal can lie unless the borrower deposit 50% of the debt claim by secured creditors, right. So the tribunal has powers for reason to the record date to reduce this amount to 25% of an claim amount. Means this decision will take from appellate DRT कि आपको 25% देना है या 50%. So it's a depend on your presentation, is depend on your fees, and whatever, whenever they will call you, you just present them, you prove them, yes. If you neglect this thing, you are not present whenever they call to you, and you are give some kind of reasons, so they will think like that, you know, the person is not interested, and वो अपने हिसाब से फिर आपको परसेंटेज देके सेटल कर लेंगे, क्लेम का अमाउंट देके आपको सेटल करेंगे, राइट। Now protection of action taken in good faith. What it is? Protection of action taken in good faith, that means the secured creditors and their officers are protected by the provisions made in the act for action taken in good faith. Good faith में जो actions ली जाती है against that is कि the secured creditors and their officers are protected, मतलब उनका बहुत बड़ा ग्रुप होता है and they protected to bank first, कि वो पैसा किसका है, बैंक का है, right. So for initiating actions by the secured creditors under the act, no suit, prosecutions or any other legal proceedings can be taken against the secured creditors or his officers. Got it? So उनका जितना भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है या उनके ऑफिसर्स है, सो उनको ये सारी चीजें पता होती है, सो दे आर नॉट sue any act, right, or they are not taking any actions because they follow the rules of DRT, क्योंकि DRT ने उनको बोला है कि ठीक है इनके भी हिसाब से होने दो, अगर नहीं किया तो पैसा, वो उनको क्या होता है कि उनको जस्ट रिकवरी करनी होती है, डजंट मैटर भाई बैंक दे या आप दो, उनको रिकवरी है। अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो यस वो एक्सेप्ट करेंगे, आपको फिर उस बेस पे टाइम भी देंगे, है ना। मतलब हमारा जो सिस्टम है बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग उसमें उलझ जाते हैं, कमिट करके उलझ जाते हैं, या फिर हम लोग कमिटमेंट फुलफिल नहीं करते, दैट्स व्हाई तकलीफ भी होती है, मतलब होता है। सो दिस प्रोटेक्शन इज गिवन सो दैट एक्शंस contemplated and authorized under SURFACI Act can taken without fear of counter action from the borrower or any other person having interest in the property. फिर बैंक क्या करती है, आपको पूछना बंद कर देती है। DRTO also have right, then he contemplated and authorized under SURFACI Act, he should give you a notice, should give notice borrowers and all others, and give right to bank to take action to take physical possession of your property. Got it? समझ में आ रहा है? कुछ ऑब्जेक्शंस है, कुछ पूछना है? यस, नो, ओके। मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है सबको? यस मैम। ओके, थैंक यू। सो दिस इज द
सरफेसी एक्ट के और डीआरटी के ये है। नाउ सिविल कोर्ट नो जुरिस्डिक्शंस। अभी आप फिर सिविल में गए, डीआरटी ने हकाल दिया आपको, फिर आप गए सिविल कोर्ट में, ठीक है। The SARFAESI Act has conferred jurisdictions on many matters to the Debt Recovery Tribunal or the Appellate Tribunal. So therefore, for any such matters where empowerment and jurisdictions is to the Debt Recovery Tribunal or the Appellate Tribunal, no civil court shall have a jurisdiction to entertain any suit for proceedings. मतलब आप सिविल कोर्ट में जाओगे ना, वो पढ़ लेगा आपका रिपोर्ट क्या है और फिर आपको वो एंटरटेन नहीं करेगा, बोलेगा बेटा तूने वहां पे तुझे 3 चांस दिए थे, तू तीनों बार नहीं गया है ना, और फिर आपको पेनल्टी लग गई तो आप सिविल में आ गए। तो सिविल में ये मैटर सॉल्व नहीं होते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि आपके प्रॉपर्टी के जितने भी मैटर है, एनपीए वाले जितने भी मैटर है, वो आपको डीआरटी में जाके ही निपटाना है। सिविल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये इस मैटर में नहीं आता है, क्योंकि ये लोन का मैटर होता है एंड डीआरटी हैज अ राइट टू सॉर्ट आउट इट, ठीक है। तो यहाँ पे सिविल कोर्ट भी आपको नो जुरिस्डिक्शंस करके स्टैंप लगा के आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं लेगा, बोलेगा नहीं, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। नाउ सिमिलरली एनी कोर्ट और एनी अथॉरिटी कैन नॉट grant injunction in such matter. Only DRT have right to give you a injunction अगर आपने उनके हिसाब से फॉलो किया मैटर को तो। अदरवाइज सिविल कोर्ट हैव नो राइट, सुप्रीम कोर्ट हैव नो राइट। वो क्रिटिकल मैटर में ही वो लोग इसमें पढ़ते हैं, और अभी तो नए लॉज आ गए हैं तो उसमें तो और ज्यादा क्रिटिकल है, उन्होंने हर एक को उसके राइट दे दिए, राइट। सो सिमिलरली एनी कोर्ट और अथॉरिटी कैन नॉट ग्रांट इंजंक्शन in such matters and actions taken or to be taken under this act as well as under recovery or debt due to Bank and Financial Institution Act 1993। पूरे राइट्स उन्होंने डीआरटी को दे के रखे हैं। So due to such provisions, such the implementation of the act become effective। इसकी वजह से क्या हुआ है, जिसका मैटर है वो वही देख रहा है। पहले ऐसा नहीं था, सारे लोग सिविल में ही जाते थे तो वो मैटर बहुत पेंडिंग रहते थे, बट अभी उन्होंने जैसे आर्मी का, डिफेंस का मैटर है तो वही लोग सॉर्ट आउट करेंगे, तो उनको राइट देने की वजह से केसेस भी अच्छी से सॉर्ट आउट हो रही है कोर्ट्स में, है ना। बट यू शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। लिमिटेशन एक्ट्स, व्हाट इट इज एप्लीकेबल, राइट। द एक्शन the secured creditors can take against the security the SARFAESI Act are required to be taken within the limitation as per section 36 of limitation act। every मतलब हर एक को क्या है, लिमिटेशंस है, हर एक को क्या है, रिस्ट्रिक्शंस है, हमारी भी लिमिट है। हम 24 आवर्स बात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, हम 24 आवर्स चल नहीं सकते, हम 24 आवर ईट नहीं कर सकते, क्यों, बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस। क्या है, लिमिटेशंस है। तो हर एक की लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशंस में ही काम करना है। वैसे ही डीआरटी का भी एक लिमिटेशन है अंडर सेक्शन 36 में, दैट मींस द एक्शन हैज टू बी टेकन विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑन विच कॉज ऑफ एक्शन अराइज। मतलब एक बार आपका अकाउंट एनपीए हो गया, एनपीए होने के बाद आपने डीआरटी में चले गए या कहीं और चले गए, तो एक बार आपका केस डीआरटी में चला गया तो 3 साल तक वो डीआरटी में ही रहता है, मतलब डिपेंड करता है, और उसके बाद ही वो एक्शन लिया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पोजीशन अगर डीआरटी को लगता है कि नहीं, अगर वो भी आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, अगर आपने जैसे अभी मैंने बताया ना आपको कि अगर आप 45 डेज में 120 डेज में रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो डीआरटी तीन नोटिफिकेशंस में एवरी 3 नोटिफिकेशंस अगर आप उनको अप्लाई नहीं करते हो, रिप्लाई नहीं करते हो, तो वो सीधा आपका केस सामने वाले को दे देगा। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्ड करते हो तो 3 साल तक या 3 साल के विद इन 3 years में आपको वो क्या देता है, राइट देता है ना, आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है। दैट इज द मैटर। ड्यूज आफ्टर द SARFAESI actions, what actions they will take, है ना। SARFAESI का क्या actions वो लेते हैं। if latter sale of securities the claim is not fully satisfied and still there are any dues to be recovered from the borrowers, so the creditor is required to file civil suit before the civil court or a claim before the debt recovery tribunal
or the authorities court under the Cooperative Society Act as may be applicable within limitation period. अगर आप कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट पढ़ोगे तो उसमें वो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि एज पर विच लॉ आप कहाँ पे जा सकते हैं, कहाँ पे अपील कर सकते हैं, कहाँ पे एप्लीकेशंस दे सकते हैं रिगार्डिंग दैट। सब बैंक जितने भी है उन बैंक में डीआरटी को फुल राइट, जैसे हमारे इसमें आरबीआई को बैंक ने, आरबीआई मतलब मेन ब्रांच है ना, वैसे ही प्रॉपर्टी के मामले में, एनपीए के मामले में बैंक से रिलेटेड जितने भी लोन से रिलेटेड है वो सिर्फ हाउसिंग लोन या कमर्शियल लोन से रिलेटेड जो भी है उसके जो मैटर्स है वो कहाँ पे सॉर्ट आउट होंगे, डीआरटी में। ओके, दैट इज द केस। We'll give you only 2 minutes. Okay, 2-minute breakup. Hello. Yeah. So that is the matter. It happened when you are go through DRT. Now exemptions under section 31. What kind of exemptions? So the provisions of Act shall not apply to lien on goods, money on security under contract law or sale of goods. ये जो एक्ट है सरफेसी एक्ट, ये सिर्फ होम लोन, प्रॉपर्टी लोन से ही रिलेटेड है। आपने अगर गुड्स किसी को ये कर दिए या फिर मनी दे दिया सिक्योरिटी के तौर पे, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। सो प्लीज ऑन मूवेबल विद इन मीनिंग ऑफ 122 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके लिए भी एग्जेम्पशन है, इसमें नहीं आएगा। क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इन एनी एयरक्राफ्ट, इसमें भी नहीं है। क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इन वेसल्स, conditional sale, hire purchase or lease or any other contract in which no security interest has been created. So right of unpaid seller भी नहीं है, इनके हर एक के ये कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे ये सारे मैटर, राइट। So the property is not liable for attachment under CPC. CPC भी मतलब सिविल प्रोसीजर कोड, जो हमने देखा ना सिविल कोर्ट में भी आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। Where financial assistance not exceeding ₹1 लाख, है ना, आपका जो असेट्स है वो एक्सीडिंग मतलब जो भी ये 1 लाख के ऊपर होना चाहिए, बिलो नहीं हो सकता। Where dues are less than 20% of principal and interest agricultural land, ये सारी exempted है, ये सरफेसी एक्ट में नहीं आता है। Now when borrower succeed in section 17, अब section 17 क्या है सरफेसी एक्ट में?
कि again even if borrower succeed in his appeal under section 17 SARFAESI Act 2002, the borrower may not be happy. It is interesting. ठीक है. So because the borrower might have clearly alleged or allegation मतलब allege कर लेता है, established that the bank was at fault in adhering to the terms and conditions of the sanction and might have wanted the DRT to force the bank to act upon the agreed terms. मतलब DRT के terms and conditions से ही वो होगा, allege होगा, या फिर उसी के अंडर आपको उसे क्या करना है, कंप्लेंट करना है या उसमें एप्लीकेशन करना है अंडर सेक्शन 17. अंडर सेक्शन 13 किसके लिए है? SARFAESI Act 13(1), 13(2), 13(3). Come on, what we do under that section? Hello, come on, section 13 for what? Company Act. No, कंपनी एक्ट. अरे हम लोग कंपनी लॉ नहीं सीख रहे हैं. फाइनेंशियल लॉ में हमने जो SARFAESI एक्ट देखा था, SARFAESI एक्ट में 13(1), 13(2), 13(3) क्या था? गलत पढ़ रहे हो बेटा, आपका ध्यान कहाँ पे है? यस, एनीवन? नोटिस फॉरगॉट, उसके अंडर आपको नोटिसेस आ रहे हैं ना, सेक्शन 13, सेक्शन 13(1), 13(2), 13(3), 3 नोटिसेस आते हैं ना आपको. पहला नोटिस आता है कि आपका अकाउंट एनपीए होने वाला है. सेकेंड नोटिस एनपीए होने वाला है, आपको इंस्टॉलमेंट ईएमआई भरना है विद इन 30 डेज. सेकेंड नोटिस आता है कि आपको यू आर नॉट रिप्लाई फॉर फर्स्ट नोटिस एज पर दिस वो जो भी लेटर रेफरेंस रहता है. इफ यू आर नॉट पेएबल विद इन 60 डेज your account may be NPA. Then section 13(3) में क्या आता है? Your account is going to NPA and bank has right to take a physical possession. So please visit bank or you may pay full amount within that period. सीखा था कि नहीं सीखा था? भूल गए सब? No मैम. क्या नो? आज पहली बार अटेंड कर रहे हो क्लास? No मैम. फिर इतने दिनों से तो वही बता रही हूँ. कल भी हमने यही सेक्शन पढ़ा था डीआरटी में. सेक्शन 13 क्या है? सेक्शन 13(1) में नोटिस आती है, 2 में नोटिस आती है, 3 में भी नोटिस आती है. Yes मैम. फिर कैसे भूल गए आप? कंपनी लॉ में चले गए. अब कंपनी लॉ तो बहुत दूर की बात है बेटा, हम फाइनेंशियल लॉ पढ़ रहे हैं ना. ओके, सो सेक्शन 17 में आप अपील कर सकते हैं. और अगर आप अपील जो भी आप बैंक ने डिसीजन दिया है उसमें आप अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आप और उस बैंक में अपील कर सकते हैं कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड व्हाट एवर द इंटरेस्ट यू पे अस. सो आप उसके अगेंस्ट में भी डीआरटी को अपील कर सकते हैं. सो बट इट नो विल नॉट हैपन एंड डीआरटी में सिंपली सेट असाइड द पोजीशन नोटिस इशूड बाय द बैंक अंडर सेक्शन 13(4). ठीक है, अभी हमको तो 3 नोटिस मिले थे, फिर हमने डीआरटी में आए, फिर डीआरटी बैंक को नोटिस भेज देती है एंड 13 सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट दैट बैंक इम्प्लाइडली हैव एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ फ्रेश. बैंक ने हमें SARFAESI एक्ट के अंडर 3 नोटिस दिए थे. हम सेटिस्फाइड, हमने डीआरटी में केस किया, डीआरटी ने हमको इंटरेस्ट के साथ जो भी था वो देने की कोशिश की, लेकिन यू आर नॉट सेटिस्फाइड तो यू कैन अगेन अपील अंडर सेक्शन 17. ठीक है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो डीआरटी हैज राइट. तो फिर डीआरटी क्या करती है? बैंक को नोटिस दे देती है कि अभी आप अपना प्रोसेस चालू कर दो. सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, उसे बेचना है, वो पैसा देने को तैयार नहीं है. सो यू मे स्टार्ट अ फ्रेश, फिर से स्टार्ट करो और क्या है माय मैटर निपटाओ. देन it would be interesting to understand as to what that means. That may be mean nothing at time unless the borrower is interested only in getting some time to repay the outstanding amount. फिर वो सीधा हो जाता है, बोलता है नहीं बाबा अभी मेरे पास पैसे नहीं है,
अब मैं पे करूंगा। बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े फ्रॉड केसेस, मैंने तो एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स दिए आपको, मुंबई जैसी सिटी के आपको एग्जांपल्स दिए कि वहां की अगर कोर्ट में जाएंगे तो ये पूरी 3-4 जो कमरे है ना उनके सारे इसी से भरे हुए, इतनी केसेस है, इतनी सारी सीडीज, इतने सारे वो लोग जाते हैं तोड़ते हैं उनका बिल्कुल, क्योंकि इलीगल बहुत होता है वहां पे, फिर से वो इंजेक्शन लेके फिर से वो वहां पे स्टार्टअप कर देते हैं। बाप रे बहुत है वहां पे। आप कभी अगर लॉ वगैरह कर रहे हो तो आप जाइए वहां पे, आपको बहुत सारी स्पेशली डीआरटी से तो बहुत सारी केसेस आपको मिलेंगे। और अगर आपको बैंक के थ्रू जाना है, अगर बैंक मैनेजर बनना है तो ये लोन डिपार्टमेंट में काम करके देखिए, यू हैव अ राइट। बहुत सारे हो, लेकिन इसमें सारे लीगल ही लोग होते हैं डीआरटी में। बैंक में भी ये इस सेक्शन में मैक्सिमम सारे लीगल लोग ही होते हैं। दे प्रीफर ओनली लीगल पीपल बिकॉज दे हैव अ राइट टू सस्टेन द पीपल एंड they have knowledge how they handle that kind of cases। तो n number of मतलब वो सारे पैनल्स पे होते हैं सारे लॉयर्स, और वो ये मैटर को सेटल करते हैं, क्योंकि ये जो चीजें होती है वो सेटलमेंट के तौर पे की जाती है। तो रिकवरी जो होती है वो सेटलमेंट के थ्रू ही होती है। सो इट इज फेल्ड that the debt recovery tribunal can grant no relief to the borrowers under section 17 except asking the bank to start the proceeding afresh। मतलब बैंक के पास, डीआरटी के पास पे भी ग्रांट नहीं रहता, पूरा खत्म कर लिया रहता है। सो दे डोंट गिव एनी रिलीफ। वो बोलता है कि नहीं अब बहुत हो गया तुमको, मैंने बहुत टाइम दिया फिर भी तुमने पैसा पे नहीं किया, वो बैंक को ऑर्डर दे देती है कि अब आप अपना काम चालू करो, जैसे भी इससे पैसा लेना है लो, पोजीशन लेना है लो, आपको सेल करना है सेल करो। ठीक है, नेक्स्ट। दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा। अब ऑल्टरनेट रेमेडी क्या है, तो इसके लिए आपको एक केस दिया हुआ है, ये सारे केसेस आपको स्टडी करनी है। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, केरला का भी एक केस चल रहा था रिगार्डिंग दिस। ये 2009 का केस था, सुप्रीम कोर्ट का केस नंबर 194 है इसका, मतलब स्टेट ऑफ केरला का। so that the right to property can be taken away only as per law and right to hold the property has been glorified as human right। वहां का जो केस लॉ है वो कहता है कि इट्स अ ह्यूमन राइट, सो ह्यूमन को राइट होना चाहिए कि उसकी प्रॉपर्टी पे किसका पोजीशन है और किसका नहीं, कि और वो क्या कर सके। आप बैंक, मतलब उनका कहना है कि बैंक हैव नो राइट, ठीक है, ओनली प्रॉपर्टी ह्यूमन ही लेगा। बट अगर ह्यूमन पैसा पे नहीं करेगा, क्योंकि पैसा देने वाला भी ह्यूमन ही है ना। सो यहाँ पे इनका कहना यह है कि ये जो मैटर है ये ह्यूमन राइट कोर्ट में सॉल्व होने चाहिए, ना कि डीआरटी में। ओके ठीक है, दैट अपार्ट इट इज वेल सेटल्ड लॉ दैट अवेलेबिलिटी ऑफ एन ऑल्टरनेटिव रेमेडी इज नॉट एन एब्सोल्यूट बार for exercising the writ jurisdictions and it is only a self-imposed restraint at its power। क्या कहना है कि भाई अगर jurisdictions are have no alternative remedy, हमारी प्रॉपर्टी जा रही है, आज करोड़ी की प्रॉपर्टी है और 3 लाख आउटस्टैंडिंग पेमेंट के लिए बैंक उसे सील कर रही है, बेच रही है, ऑक्शन कर रही है, सो दैट इज नॉट राइट ना। मतलब मैंने इतने साल से मेहनत करके प्रॉपर्टी खरीदी और मैं 3-6 महीने लोन पे नहीं कर पाई, या 1 साल मेरे पास कुछ प्रॉब्लम आ गया, जैसे पैंडेमिक का ही समझ लीजिए, तो बैंक ने मेरी प्रॉपर्टी सील कर ली, करोड़ों की प्रॉपर्टी, कि सिर्फ 7 लाख रुपए पे नहीं किए इसलिए। और उसी प्रॉपर्टी को बैंक मेरा पैसा तो मुझे दे नहीं रही है, और अगेंस्ट वो सील करके मुझे कोई राइट्स भी नहीं, मेरे साथ कोई जस्टिस ही नहीं हो रहा है। हम लोग को ऐसा लग रहा है ना कि हमारे साथ जस्टिस ही नहीं हो रहा है, तो हमने रीड नोटिफिकेशंस दे दिए, हमारे पावर सब सस्टेंड हो गए, हम मतलब हम घर के मालक होके भी कुछ नहीं है ना। so there cannot be any complications and there should be effective remedy available to the aggrieved if there is a merit in the contention, and I do strongly feel that the high court is required to entertain writ petitions even respect of SARFAESI act if required as an exceptional केस। कुछ एक्सेप्शनल केसेस के लिए वो ठीक है करते, लेकिन अगर उसमें भी आपने ड्यू डेट पे पैसा पे नहीं किया तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगी। आपको टाइम लिमिट तो दिया उसने, है ना, लेकिन आपको भी तो ड्यू डेट में पे करना पड़ेगा। अगर आप ड्यू डेट में नहीं करेंगे तो वो तो जाएगा ही जाएगा ना।
Now we know that there can be people to approach the High Court with ulterior motives, and such cases can easily be dealt with. So, but there should be effective remedy to the innocent owner, and the innocent owner should not get troubled with the irregularities committed by the bank or committed by individual with the involvement of bank either directly or indirectly. सही तो बात है, अगर आपने बैंक को कमिट किया कि मैं ये तारीख को पैसा दूंगा, बट यू आर नॉट फुलफिल, सो बैंक हैज राइट ना, क्योंकि वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, मतलब पब्लिक का पैसा है जो बैंक ने आपको दिया है ना, सो वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है फिर। मतलब अगर आप इफ यू कमिटेड एनीवन इफ कि दैट यू विल पे दैट अमाउंट ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, बट you fail to fulfill your commitment, that means you are not doing anything any else. Now, right to property. So, right to property is not a fundamental right, and High Court should not entertain writ petitions in respect of case under SARFAESI Act 2002. So, tough caution is to be exercised. ये प्रॉपर्टी के मामले में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इट्स टू टफ, ओके, बहुत ही स्ट्रिक्ट है. सो इट इज करेक्ट टू से दैट वंस एनपीए इज ऑलवेज एनपीए अंडर SARFAESI Act 2002. एक बार एनपीए गया तो वो हमेशा के लिए जाता है. सही में है. सो डोंट डू दिस. मतलब एनपीए होना मतलब आपका सिबिल खराब हो जाता है, आपको किसी चीज के लिए लोन नहीं मिलता है, आपका क्रेडिट, आपकी इमेज, आपकी प्रॉपर्टी, आपके रिलेटिव्स, आपकी फैमिली, एवरीथिंग चला जाता है. क्योंकि ये तो कहावत है ना, भाई पैसा सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है तो लोग पूछेंगे, आएंगे, आपको वाह वाह करेंगे, जो नहीं पूछ रहा वो भी पूछेंगे. लेकिन एक बार आपका सब चला गया तो कोई, सही है कि नहीं है? यस और नो? कभी सुना है ऐसा केस आजू बाजू में अपने फ्रेंड्स में? हेलो, एम आई ऑडिएबल? Yes, ma'am. ma'am. किसका किसका केस हुआ है? बताइए. क्या आपको सिर्फ इतना ही बोलना है कि मैडम ने पूछा मेरे आवाज आ रही है, आप बोलते यस मैम, बाकी क्वेश्चन का आंसर कोई पूछता ही नहीं, आंसर ही नहीं देता, ऐसा क्यों? कभी सुना है ऐसा केस? किसी के साथ हुआ है? हेलो, समझ में आ रहा है क्या एनपीए क्या है? एनपीए के Yes, लिए ma'am. पापड़ बेलने पड़ते हैं, और अगर एक बार एनपीए हो गया तो उससे बाहर आने के लिए कितना मतलब तकलीफ होती है. बैंक में भी जाओ, वहां पे भी फीस पे करो, डीआरटी में जाओ, वहां पे भी करो, लेकिन वो लोग भी आखिर में ये हो जाते हैं, है ना. ऐसा नहीं कि आपको जस्टिस नहीं मिलता, लेकिन आपको उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना होता है. यहाँ पे एक और केस दिया है, मिसेस श्रावण दाल मिल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, एंड इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. अब दाल मिल ने भी कंपनी थी, दाल मिल कंपनी का ये बहुत बड़ा केस था, बहुत फेमस हुआ था. और ये कंपनी के मालिक ने भी वो इंडस्ट्री को चलाने के लिए लोन लिया था, लीज पे था, और स्टेट बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का था. The right of the borrower to have a due consideration of objections is, so therefore an important right of borrower, where the bank is bound to apply its mind and inform the borrower of its reasons as to why and how the account is classified as NPA. उसका भी account NPA था, so bank inform them, particularly when the borrower raised a specific objection in that regard. The reply of the bank must indicate application of mind by the bank that the decision of the bank in classifying the account as NPA was fully in conformity with the prudential norms of RBI. उसने आरबीआई, क्योंकि इंडस्ट्री था ना, तो एज पर इंडस्ट्री में आरबीआई का जो एक्ट होता है उसके अगेंस्ट उसको नोटिस भेजा था, उसको इन्फॉर्म किया था कि योर अकाउंट इज एनपीए, सो प्लीज पे द अमाउंट. So what he did, non-consideration, ने कुछ कंसिडर ही नहीं किया, उसको नोटिस भेजे, उसने आंसर ही नहीं दिया,
by mere statement in reply that the bank has considered the same cannot be said to be the fulfillment of obligation of the bank under section 13 to 13(3)(a). देखो इतने नोटिस भेजने के बाद उसने 13(2) का भी आंसर नहीं दिया, 13(3)(a) का भी आंसर नहीं दिया ऑफ द सरफेसी एक्ट। बहुत बड़ा होता है ये, इसके साथ कभी खेलना नहीं, या तो पूरा करो या तो मत करो। इट ऑल्सो कैन नॉट assuming that particular account had become NPA, the subsequent payment by the borrower entitles as borrower to upgrade the said amount or account and may came out the said classification of his account as NPA. Therefore, it is incorrect to presume that once a NPA is always on NPA. उसने बहुत बार पैसे भी भरे लेकिन वो NPA में था क्योंकि उसने इंटरेस्ट पे नहीं किया, whatever the condition से वो फुलफिल नहीं की, इसलिए एक बार उसका NPA में चला गया तो वो NPA में ही रह रहा था। मतलब उसने वो क्या कर रहा होगा कि भाई 3 महीने के बाद एक अमाउंट भर देता था, फिर से उसको नोटिस जाता था, फिर से वो एक अमाउंट भर देता था, एक इंस्टॉलमेंट, फिर से, तो वो NPA में ही रहा उसका अकाउंट, वो कभी क्लियर ही नहीं हुआ। क्योंकि ड्यूज एक बार, एक तो बोलते हैं कि लोन दो मत, अगर आपने लोन लिया तो आपको वो टाइम पे करना है, अदरवाइज एनपीए। तो एक बार एनपीए लग गया ना तो वो सेटलमेंट के साथ बैंक आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि भाई कर लो सेटलमेंट। अगर एक बार लग गया तो वो फिर बहुत मुश्किल होता है, वो निकलता ही नहीं है और बैंक वो पूरा सील कर लेती है। इसलिए कहा है NPA. So, and it is precisely for the said reason that the clause 4.2.4 of the prudential norm specifically states that if interest and principals are paid by the borrower in case of loans classified as NPA, the said account should no longer be treated as NPA. अब एब्सोल्युटली ना, अगर आपने विद इन टाइम, जैसे ही आपको पहला नोटिस आया कि आपका अकाउंट एनपीए हो गया, बस कुछ भी करके ना, जैसे 50,000 है भर दो, जो भी इंटरेस्ट भर दो, तो आप क्लियर हो जाओगे। लेकिन उसके बाद में भी आपको रेगुलर करना है उस अकाउंट को, रेगुलर टाइम पे आपको ईएमआई पे करने हैं, एनपीए में नहीं जाने देना है, राइट? एंड मे बी क्लासिफाइड एज सब स्टैंडर्ड अकाउंट। Consequently, therefore, the action under the SARFAESI Act with regards to the said account not be tenable as jurisdictional fact under section 32 SARFAESI। एक बार 32, 33 का नोटिस आ गया मतलब आपका कुछ नहीं हो सकता। वो फिर आपको केस करनी होती है डीआरटी में, जो हमने अभी पढ़ा, और उसमें भी वो लोग उतना फीस, उतनी पेनल्टी पे करनी पड़ती है, फिर इधर भी आपको ईएमआई उसका इंटरेस्ट दो, फिर जाके होता है। तो बेटर है कि लोन को ऑलवेज क्लियर करो ऑन टाइम। नाउ पार्ट 2 है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये क्या है? एप्लीकेशंस करनी होती है बैंक को। All the bank companies, nationalized bank, the State Bank of India, as well as its subsidiaries bank and cooperative bank are within the meaning of the World Bank for the purpose of the act. Every bank comes in RBI. Okay, तो every bank के rule same है। So functional institutions means what? A public financial institution within the meaning of section 4A of the Company Act 1956. यहाँ पे कंपनी एक्ट आता है क्योंकि वो रूल्स इसको भी लागू है। एंड एनी इंस्टीट्यूशन स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज H of section 2 of the recovery debt due to bank and financial institution act 1993 means 1993 का जो ये है एक्ट है ना। सो इट विल एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी भी है। So point number 3 है the International Finance Corporation established under the International Finance Corporation means status, immunities and privilege act 1958. So any other institution or non-banking financial company as defined in clause 4 of section 45(1) of the Reserve Bank of India Act 1934. So which the central government may by notification specify as a financial institution for the purpose of this act. सारे एक्ट है। asset reconstructions क्या है? acquisition of any right or interest in the security by any securitization company or reconstruction company for the purpose or realization of such financial assistance is called asset reconstruction। means आपको asset reconstruct करना है या नई asset लेनी है, उसी asset के कोई part को renovate करना है, so that comes in asset reconstructions।
Now, securitization, what it is? Securitization means acquisition of financial asset by securitization on reconstruction company for the bank for realization of debt. मतलब बैंक भी क्या करती है, सिक्योरिटी रखती है आपकी असेट को, आपकी प्रॉपर्टी को, and on that basis पे लोन प्रोवाइड करती है. इट इज कॉल्ड ऑल्सो एसेट रिकंस्ट्रक्शंस. ठीक है, जैसे बहुत बार हम लोग ने एक प्रॉपर्टी ले ली, उस प्रॉपर्टी को अब 10 साल 15 साल हो गए और हमें उस प्रॉपर्टी में इनोवेशन करना है. बैंक का लोन तो चल ही रहा है, मतलब रिकंस्ट्रक्शन करना है, तो उसके लिए भी बैंक क्या करती है, आपको लोन देती है. बिकॉज बैंक के पास आपकी प्रॉपर्टी क्या है, ऑलरेडी सिक्योरिटी, सिक्योर्ड के तौर पे डेप्ट है, डेप्ट के तौर पे डिपॉजिट है. सो इट इज ऑल्सो इंक्लूड चेंज और टेक ओवर of the management of the business of borrower for proper management of business of the borrower, right? उनका भी, borrower का भी बिजनेस चलता रहेगा, लोन भी मिलता रहेगा, उसकी EMI तो आ ही रहा है, इंटरेस्ट तो आ ही रहा है. So that's why. Now what is borrower? Borrower means a person who has been granted financial assistance by the bank. बैंक से जिसे लोन मिलता है, that is the borrower. Who has given any guarantee, जिसने गारंटी दी है, जिसने सिक्योरिटी दी है बैंक को, है ना, against that loan, that is the borrower. So who has created any mortgage, hypothecation or pledge as a security for the financial assistance granted by any bank, है ना. बैंक में सिक्योरिटी, गोल्ड रख दिया, उसके अगेंस्ट में आपको पैसा मिल गया, गोल्ड पे लोन मिल गया, आपने प्रॉपर्टी रख दिया, आपने आपकी गाड़ी रख दी, वॉट एवर द सिक्योरिटी. आजकल कार पे भी लोन मिल ही रहा है, तो वो सिक्योर, वो बैंक में गिरवी रहती है. सो एन नंबर ऑफ मॉर्गेज वॉट एवर, सो दैट इज, और गारंटी के साथ आपने उसे दिया है. अ पर्सन हु बिकम्स बोरोवर of a securitization company or reconstruction company consequent upon acquisition by it of any right or interest of any bank or financial institution in relation to such a financial assistant, right? So any, yes, so any reasons है या कुछ भी है, उसके बेस पे हम लोग प्रॉपर्टी को, कंपनी की प्रॉपर्टी को या कंपनी की प्रॉपर्टी या कोई भी है, तो उस पे रिकंस्ट्रक्शन लोन ले सकते हैं. नाउ फाइनेंशियल असेट्स. सो फाइनेंशियल असेट्स में क्या आता है, तो फाइनेंशियल असेट्स में अ क्लेम टू एनी डेप्ट और रिसीवेबल और पार्ट देयर ऑफ वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, और any debt or receivable secured by mortgage or immovable property, any immovable property, or hypothecation or pledge of movable property or any right or interest in the security, whether full or part securing debt. मतलब कुछ भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने बैंक में एज एन सिक्योरिटी के तौर पे रखा है, जिसके बेस पे आपने मॉर्गेज लोन लिया है और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं. गॉट इट? So any beneficial interest in any movable or immovable property or in debt receivables, whether such interest is existing, future, occurring, conditional or contingent, or any financial assistance, जिसका फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, भले ही आपका मंथली EMI जा रहा है, बट वो प्रॉपर्टी आपके नाम से हो रही, वो असेट आपके नाम से हो रही है, वो कंपनी में जो भी असेट्स है वो कंपनी के नाम से हो रही है ना. सो दैट इज द फाइनेंशियल असेट्स, एनी फाइनेंशियल एसेट्स. Now non-performing asset, वही NPA, what it is, an asset or account or of a borrower classified by a bank as a substandard or doubtful or loss asset in accordance with the directions or under guideline relating to asset classification issued by the Reserve Bank of India, right? So borrower ने ऐसे asset जो बैंक के ध्यान में आ गई कि अभी वो NPA नहीं दे पा रहा है, लोन नहीं दे पा रहा है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो उसको फुलफिल हो रहा है, तो अंडर द गाइडलाइन एक्ट ऑफ RBI आपको नोटिस मिलता है और उस असेट को NPA कहा जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट. सो प्रॉपर्टी मीन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, एनी डेप्ट और एनी राइट टू रिसीव पेमेंट ऑफ मनी, वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड हो, सिक्योर्ड लोन हो या अनसिक्योर्ड लोन हो. नाउ रिसीवेबल्स, वेदर एग्जिस्टिंग और फ्यूचर. Intangible asset such as know-how, patent, copyright, trademark,
license, franchisee, or any other business or commercial right of similar nature. Secured asset, it is a property under the Act of SARFAESI Act, which have already seen. Secured creditors and secured debt means any bank or any consortium of group. Consortium means सब्सिडियरी का एक ये होता है, ग्रुप होता है सारे, इसका मतलब सबका बैलेंस शीट एक ही बनता है, सब्सिडियरी कंपनी जिस बैंक की होती है. सो एनी कंसोर्शियम ऑफ और ग्रुप ऑफ बैंक इज इन होम whose favor security interest is created by the borrower for due repayment is called as secured creditors, right? So secured debt means a debt which is secured by any security interest. Security interest क्या है? Any right, title and interest of any kind whatsoever upon the property created in favor of any secured creditor. Secured credit is called as security interest. What it is? It's a security interest. Now qualified institutional buyers. So qualified institutional buyer means a financial institution, insurance company, bank, state financial corporation आएगा उसमें, then state industrial development, securitization company or reconstruction company which has been granted a certificate of registration under subsection 4 or subsection 3. तो okay, मतलब ये सारी एसेट है, कॉर्पोरेशंस है, जितने भी है, इंडस्ट्री है, कॉर्पोरेट है, इंश्योरेंस कंपनी है, बैंक है, ये कम्स इन दिस एक्ट, राइट? So any asset management company making investment on behalf of mutual fund or pension fund or a foreign institutional investor registered under the Security and Exchange Board of India Act 1992. So all it comes under this source. Got it? So this is the SARFAESI Act. I hope you understand well. If you want any question regarding this, you may ask, please. सबको समझ में आया what is SARFAESI Act? क्या होता है SARFAESI Act? इसके बाद हम देखेंगे कॉर्पोरेट डेप्ट. ठीक है, उसमें आपको CDR मीन्स कॉर्पोरेट डेप्ट क्या होता है, कॉर्पोरेट में कैसे असेट को रिकंस्ट्रक्शन की जाती है कंपनी में, उसका क्या क्राइटेरिया है वो देखेंगे. गॉट इट? आप में से किसी को कोई क्वेश्चंस पूछना है रिगार्डिंग दिस? नो? ओके, ठीक है. सो नेक्स्ट लेक्चर आप अटेंड करिए. अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. ओके,